Hare Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna. We'll begin the session with prayers as is customary. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. Thank you for joining me in today's session. Today we will be completing the second chapter. We're doing very elaborate discussions and it is required. Yesterday we completed shloka number 69, which was Ya Nisha Sarva Bhutanam Tasyam Jagarti Samyami Yasyam Jagrati Bhutani Sa Nisha Pashyato Munehe. We learned how when it is night for a transcendentalist, it is the time of awakening for the materialist, and when the time for sleeping for a materialist, it is a time of awakening for a transcendentalist. Because we must take the deeper meaning of it. It only means to say that when transcendentalist जब कोई आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए मतलब अपना जीवन को आगे बढ़ा रहा है, तो वो उस विषयों में जागृत हो जाता है और भौतिक विषयों में वो सुप्त स्थिति में चला जाता है, और उसका तद विरुद्ध है एक भौतिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति, a materialistic person, where he is mainly engaged in activities for his materialistic life and is not so much engaged for spiritual progress. So this is the actual meaning of it. We will just discuss a few points of that particular shloka before we start today's shlokas. So इस श्लोक में हम ये जान रहे कि how the company we keep matters a lot. जो एसोसिएशन, वॉट एवर एसोसिएशन, जो भी एसोसिएशन हम पा रहे हैं, किसका संगत में है हम, ये बहुत महत्वपूर्ण है. So we can't nourish our souls amidst people who are out to sell their souls. अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ संगत करना है जो उसी मार्ग में है. और अगर हम भौतिक विषय वस्तुओं के जो अधीन हैं उनके संगत में हम ज्यादा रहेंगे तो हम भी उन्हीं तरह बन जाएंगे. It's very easy to get spoiled, very difficult to construct the character. एक व्यक्ति को अपना चरित्र नष्ट करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसी चरित्र को मतलब उम्दा करना, ऊंचा करना, उसको बहुत साल लग जाएगा. So the last thing on a materialistic person's mind is usually the first thing on the mind of a spiritualist. एक भौतिक विषय वस्तु के सोच में जो लगा है वो भगवान, आध्यात्मिक विषय, जपा, मंगल आरती, ये सब वो उसका आखिरी सोच होगा, अगर होगा भी तो. लेकिन एक जागृत इंसान, एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट, उसका पहला ही सोच है कृष्ण भगवान, उसको कैसे हम संतृप्त करें, आध्यात्मिक प्रगति हम कैसे करें. So you see, it's completely poles apart. So a materially successful person is hitting the bullseye. एक भौतिक जो जगत में जो सक्सेसफुल आदमी है वो हाँ
वो he is hitting the bull's target, मतलब वो he is hitting the eye of the bulls in the target, but वो एक रॉन्ग टारगेट पे अपना निशाना तंज रहा है. So though a materialistic person looks like he's very successful, he might be hitting, it looks like he might be hitting the bullseye, but actually he's hitting the wrong target. तो उससे क्या फायदा हुआ? So एक आध्यात्मिक प्रगति करने वाला व्यक्ति हमेशा सही टारगेट, मतलब कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति के ऊपर उसका ध्यान वो रखेगा. So this is what we learned yesterday. We will move on to today's shlokas. We will try to complete chapter 2 today. Only 3 shlokas to go, and then from the next session we'll be able to start chapter number 3. So text number 70, a very important shloka, because it teaches us how somebody can achieve peace, who can achieve peace rather. 70 and 71 दोनों श्लोक ये सिखाता है कि कौन मतलब शांति का हकदार है, कौन शांति पा सकता है अपने जीवन में. आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी. स शान्तिमाप्नोति, ऐसे व्यक्ति को शांति मिलेगा. दिस पर्सन विल गेट पीस, नॉट कामकामी. तो जो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा है उसको कभी शांति नहीं मिलेगा. जो आध्यात्मिक तृप्ति के खोज में है उसको हमेशा शांति मिलेगा. सो Prabhupada is writing the translation, a person who is not disturbed by the incessant flow of desires, मतलब जो व्यक्ति, मतलब उसको इंद्रिय विषय उसके अंदर मतलब आ रहा है, उसके मन में आ रहा है, लेकिन उससे वो विचलित नहीं है. जैसे that enters like rivers into the ocean which is ever being filled but is always still. जैसे समुद्र, नदियां उसके अंदर आ रहा है लेकिन समुद्र कभी अपनी सीमा को पार करके नहीं जाता है, वो विचलित नहीं होता है. सो आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः, समुद्र में आपः मतलब नदी का पानी आ रहा है, प्रविशन्ति यद्वत् जैसे आ रहा है, लेकिन वो विचलित नहीं हो रहा है. सो ही कैन अलोन अचीव पीस. स शांतिम आपनोति, नॉट द मैन हु स्ट्राइव्स टू सैटिस्फाई सच सेंसेस, न कामकामी. जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहा है वो कभी शांत नहीं हो पाएगा. So this is the meaning of this shloka. Tatvat kamayam pravishanti sarve. Even though the desire for temptation, fulfillment is coming inside, he will not be disturbed. Who? A person who is trying to do spiritual progress. So as long as one has material body, जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है, just give me 1 minute. तो जब तक ये भौतिक शरीर है हमारे पास, the demands of the body for sense gratification will continue. इंद्रिय तृप्तियों के विषय के बारे में सोचना वो बंद नहीं होगा, क्योंकि मन में ऐसे विचार आते रहेंगे. The devotee, however, is not disturbed by such desires. लेकिन ऐसे विषय उसके मन में प्रवेश भी कर रहा है तो एक भक्त उससे विचलित नहीं होता है. A Krishna conscious man is not in need of anything. तो एक कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति को कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है. Because the Lord fulfills all his material necessities. क्योंकि भगवान उसके सारे भौतिक जो नीड्स है, जो जरूरतें हैं, उसको वो पूर्ति करेगा. Therefore he is like the ocean, always full in himself. तो इसीलिए एक भक्त एक समुद्र की भांति होता है, शांत होता है, अपने सीमा से बाहर नहीं जाता है. उसके अंदर काम वासना नदियों की तरह आ रहा है तो भी वो विचलित नहीं होगा, और जब वो शुद्ध हो जाएगा वो नदी उसके अंदर बहना भी बंद हो जाएगा. He is not even slightly disturbed by desires for sense gratification. कभी भी इंद्रिय विषयों से वो विचलित नहीं होगा. That is the proof of a Krishna conscious man. तो आपको कैसे पता है कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित है?
अगर आप ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो कभी विचलित नहीं होता है इंद्रिय विषयों से, वो कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति है। सो he always remains satisfied in transcendental loving service of the Lord. वो हमेशा तृप्त रहता है, आत्मा रामा है, हमेशा भगवान की सेवा में वो विहीन है, तल्लीन है और तृप्त है, आत्मा राम है। Others, however, who fulfill desires even up to the limit of liberation, तो और व्यक्तियां जो अपने इंद्रिय तृप्ति को पूर्ति करने में पूरा योजना बना रहे, they're doing all activities for that. तो up to the person who's trying for मोक्षा, ब्रह्म ज्योति में मिलन करने के लिए जो मायावादी है, ज्ञानी है, वो करना चाहते हैं ऐसे, वो भी पूरे शांत नहीं रह सकते। They can never attain peace. कुछ ना कुछ उनके मन में विचलन का कारण हो ही जाता है। The fruitive workers, the salvationists, and also the yogis are all unhappy because of unfulfilled desires. क्योंकि बहुत एक समय ऐसा हो जाता है कि उनके जो डिजायर्स है वो फुलफिल नहीं होता, वो मतलब उसका संपूर्ण प्राप्त उनको नहीं मिलेगा। हु कर्मीस और मोक्षकामीस और योगीस, ये सबको पूरा शांति मिलना मुश्किल है। तो कौन शांत रह सकता है? केवल कृष्ण का भक्त, केवल जो भगवान के भक्त है, भगवान की सेवा में जो अपने जीवन को समर्पित किया है, वो शांत रह सकता है। So we'll move on. 71 is a continuation of 70. Further, Krishna explains about who can be peaceful. So 71, Vihaya kamanya sarvan pumams charati nispruhaha nirmamo nirahankaraha sashantim adhigacchati. So that person can get peace. Adhigacchati मतलब प्राप्त हो जाता है। कौन किसको मिलेगा? A person was given up all desires for sense gratification. विहाय कामान्य सर्वान, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के विषयों को पीछे छोड़ चुका है, ये व्यक्ति को शांति मिलेगा। Who lives free from desires, निस्पृहः, desireless, पुमांस चरति निस्पृहः, तो मतलब उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति के विषय नहीं आते हैं। Who has given up all sense of proprietorship, निर्ममो निरहंकारः, निर्ममा मेरा है सब कुछ, ये भावना वो छोड़ दिया। उस डिवॉइड ऑफ फॉल्स ईगो, निरहंकार, अहंकारा मतलब दर्प होना, निरहंकारा मतलब ऑपोजिट ऑफ दैट। He alone can attain real peace. सशांतिम अधिगच्छति, ऐसे व्यक्ति ही केवल शांति का हकदार है और अन्य व्यक्ति शांत नहीं रह पाते। That means शांत मतलब who cannot without being disturbed go ahead in their daily activities, जो बिना विचलित हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने में असक्षम है, ऐसे लोगों की बात हो रहा है। और अगर हमें शांत रहना है तो ये फॉर्मूला है। To become desireless means not to desire anything for sense gratification. निस्पृह, desireless का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर कोई मतलब ऐसे आशा है ही नहीं, वो तो सिर्फ पत्थर को पॉसिबल है। केवल एक पत्थर आशा विहीन होता है, एक जीव हमेशा आशाबद्ध है, लेकिन हम अपने आशाओं को प्यूरिफाई कर सकते हैं, उसको कृष्ण के ओर भगाते हुए। By turning it towards Krishna, we can purify our desires because we cannot stop desiring. Only a stone, निर्जीव व्यक्ति ही, निर्जीव वस्तु ही मतलब आशा नहीं करेगा, बाकी सब जीव आशा तो करेगा। So desire for becoming Krishna conscious is actually desirelessness. भगवान की सेवा में मुझे अपने जीवन को अर्पित करना है, यही डिजायरलेसनेस है। मतलब अपने लिए वो कोई डिजायर नहीं रख रहा है।
इट इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के ऐसे स्तर पे आ जाता है, वो परिपूर्ण व्यक्ति कहलाता है। एंड इन दिस परफेक्ट स्टेज he knows that because Krishna is the proprietor of everything, therefore everything must be used for the satisfaction of Krishna. क्योंकि इस स्तर पे उसको पता है सब कुछ कृष्णा से ही आ रहा है, सब मुझे भगवान ने ही दिया है, तो जो मुझे भगवान ने दिया है उसकी सेवा में उसका उपयोग होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ कृष्णा का ही है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा एंड देयरफॉर आई हैव टू यूज इट इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। फॉर हिमसेल्फ देयर वाज नो डिजायर टू फाइट, बट फॉर कृष्णा द सेम अर्जुना फॉट टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। तो इस भगवत गीता के अंत में अर्जुन तैयार हो जाता है युद्ध लड़ने के लिए, और मतलब वो पूरे दिल और दिमाग से ये युद्ध को वो लड़ता है। हाँ, बीच बीच में उसका मन फिर भी विचलित होता रहता है, लेकिन कृष्ण उसी लिए बैठे। कृष्ण इज सिटिंग देयर एज ए चैरियटियर टू गिव हिम प्रॉपर डायरेक्शंस व्हेनेवर अर्जुना इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। सो द लिविंग एंटिटी cannot be desireless or senseless. So like Arjuna, Krishna also can come and play a role of charioteer in our lives, provided we give him that role, provided we welcome him in our life. यदि हम कृष्ण को हमारे जिंदगी में आह्वान करेंगे और उसको हमारी जिंदगी का जो चाबी है, जो हमारे रथ का जो रीन्स है, उसके हाथ में हम दे देंगे, तो कृष्ण सारथी जब बनेगा तो वो सही दिशा में हमारे जिंदगी को लेके जाएगा। लेकिन हमें हमारा कर्तव्य को बखूबी निभाना है। जो आध्यात्मिक गुरु से, कृष्ण भगवान भगवत गीता से हमें जो सीख मिलता है, उसको आधार रखते हुए हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। चाहे हम साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्ट्रीट स्वीपर हो, किसी के घर में हम काम कर रहे हो, या फिर हम हाउस वाइफ हो। Housewife also is 24 hours busy working in the house, but she should also work with the directions given in Bhagavad Gita. तो उसको भी भगवत गीता का जो मार्गदर्शन भगवत गीता दे रहा है, कृष्ण दे रहा है, आध्यात्मिक गुरु दे रहे, भक्त दे रहे, उसी दिशा में उसको जाना है। So a devotee always remembers ईशवास्यम इदम सर्वम। हर जगह, हर एक प्राणी में, हर एक वस्तु में ईशावास्यम, भगवान उपस्थित है। Knowing perfectly well that every living entity is the eternal part and parcel of Krishna in spiritual identity. इसका मतलब क्या है? ईशावास्यम इदं सर्वम मतलब he knows, उस व्यक्ति को ये ज्ञात है कि हर जीव जंतु में भगवान कृष्ण स्थित है, और हर जीव जंतु भगवान कृष्ण के एक अंश है सनातन काल के लिए। So the eternal position of living entity is never on the level of Krishna or greater than him. लेकिन कभी जीव भगवान नहीं बन सकता। भगवान के मतलब एक अंग बन सकते हैं, वो है ही ऑलरेडी, लेकिन कभी भगवान जैसे बन सकते हैं। Godly we can become, but we cannot become God. It is not possible to become Krishna, but we can become a good servant of Krishna, as good as Krishna. So that is our eternal position. सनातन काल के लिए ये हमारा स्थिति है। This understanding of Krishna consciousness is the basic principle of real peace, which understanding that nothing can be on the level of Krishna and nothing can be greater than him. Krishna is asama urdhva, उसके समान कोई नहीं है और उसके ऊपर कोई नहीं है। ऊर्ध्वा, उसके ऊपर कोई नहीं है। He is the supreme God. जब ये हमें पता चल जाएगा, so Prabhupada is telling this understanding of Krishna consciousness, ये कृष्ण भावनामृत जो हमें इस सोच में जब हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, इट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रियल पीस। असली शांति हमें तभी आएगा जब हम कृष्ण को सर्वलोक महेश्वरम मानेंगे, सुहृदम सर्वभूताम नाम जानेंगे, और सारे यज्ञों का भोक्तारम यज्ञ तपसम, भोक्ता है ये जानेंगे। ज्ञात्वा मां शांति रक्षति, ऐसे व्यक्ति जो जानता है, ये चीजों को जानता है, वो शांत रह सकता है। सो वी विल मूव ऑन टू द लास्ट श्लोका ऑफ दिस चैप्टर। वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ chapter 2. Prabhupada and Krishna also
conclude this chapter with this shloka. Esha bhrami sthiti partha nainam prapya vimuhyati स्थित्वास्यम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति. रुच्छति मतलब ही कैन अटेन, प्राप्त हो सकता. क्या? ब्रह्म निर्वाण. केवल निर्वाण नहीं, केवल मोक्ष नहीं, ब्रह्म निर्वाण, द ग्रेटेस्ट ऑफ द मोक्षास. दैट इज, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ मोक्षास? Prabhupada translates ब्रह्म निर्वाण as spiritual और kingdom of God. तो इस श्लोक में हमें पता चल रहा है who can enter the kingdom of God, जो आज का हमारा थीम है. ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति, कौन भगवान की धाम में प्रवेश पा सकता है, निज धाम में. तो we will see who it is. That is the way of spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. Esha bhrami sthiti partha nainam prapya vimuhyati. Vimuhyati मतलब means to become bewildered. न विमुह्यति, न एनम प्राप्य विमुह्यति, मतलब वो विचलित नहीं होता है. कौन सा व्यक्ति? ऐसा भ्रामी स्थिति. भ्रामी स्थिति का ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी करते हैं स्पिरिचुअल सिचुएशन, आध्यात्मिक स्थिति, जो स्थिर प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति हे पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति, कभी विचलित नहीं होता. तो और क्या होगा? बीइंग सो सिचुएटेड, ऐसे स्थिति में, स्थित्वास्यम, इवन एट द आवर ऑफ डेथ, मृत्यु के समय, अंतकाले भी, वन कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड. ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति. ऐसे परिस्थिति में, मृत्यु के समय, जब हम इस स्थिति में रहेंगे, ब्राह्मी स्थिति में, कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण के बारे में सोचते सोचते जब हम प्राण को त्यागेंगे, तो हमें जरूर ब्रह्म निर्वाण मतलब भगवत धाम प्राप्त होगा, जिस भगवत धाम के हम प्रवेश करके भगवान का सनातन काल के लिए हम सेवा कर सकते हैं. So we'll read the purport. One can attain Krishna consciousness of divine life at once, within a second. तो कभी कभी लोग पूछते हैं, अरे इसके लिए तो सालों साल लग जाएगा. प्रभुपाद जी यहाँ पे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? एक सेकंड, एक क्षण में हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकते हैं. सो स्थितवास्यम, एक ही क्षण में. One can attain Krishna consciousness of divine life at once within a second, or one may not attain such a state of life even after millions of birth. और यदि हम सही कृष्ण को पहचान नहीं पा रहे, तो हमें लाखों अरबों जन्म हो जाएगा आध्यात्मिक जीवन में, फिर भी हमें भगवत धाम प्राप्ति नहीं होगा. तो कटवांग महाराज attained this state of life in just a few minutes before his death. एक उदाहरण है कटवांग महाराज का, जिसने एक क्षण में ब्रह्म निर्वाणम का प्राप्त वो कर सके. निर्वाण मीन्स एंडिंग द प्रोसेस ऑफ मेटेरियलिस्टिक लाइफ. तो निर्वाण का मतलब क्या है? मोक्ष मतलब क्या है? जब हम भौतिक विषयों से पार हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड निर्वाण. ब्रह्म निर्वाण क्या है? उससे आगे जाना. एक तो हमने भौतिक परिस्थिति से पार हो गए, उसके बाद क्या करना है? ब्रह्म निर्वाण मतलब तो आध्यात्मिक परिस्थिति में स्थित हो गए और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हम आजीवन सनातन काल के लिए, जब तक हमारा आत्मा है जो सनातन है, उतने काल के लिए हम कृष्ण भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं. So in the Buddhist philosophy, there is only void after completion of this material life. तो शून्यवाद, बौद्ध धर्म ये सिखाता है कि इस जीवन के बाद कुछ है ही नहीं, कुछ भी है ही नहीं, सब शून्य है. बट भगवत गीता टीचर्स डिफरेंटली. लेकिन भगवान यहाँ पे कुछ और ही सिखा रहे हैं. एक्चुअल लाइफ बिगिंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मटेरियल लाइफ. बौद्ध धर्म सिखाता है कि ये भौतिक जीवन के बाद कुछ है ही नहीं, शून्य है. लेकिन भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आपका असली जीवन तो इस भौतिक जीवन के बाद शुरू होगा, जब आप भक्ति में मेरे पास आएंगे. सो बिफोर एंडिंग दिस लाइफ, इफ वन फॉर्चुनेटली बिकम्स कृष्णा कॉन्शियस, तो इस जीवन के अंत तक अगर कोई भाग्यशाली कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकता है, उसको सिर्फ एक क्षण स्थित होना है, तो he at once attains the state of
ब्रह्म निर्वाणा। तो एक सेकंड के लिए भी वो भक्ति से कृष्ण के बारे में सोच पाएगा तो उसको ब्रह्म निर्वाणम गारंटी है। भगवत धाम जाना मतलब इट इज अ रिटर्न कंसेंट फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण यहाँ पे बता रहे और प्रभुपाद जी यहाँ पे साइन ऑफ कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है। On the absolute plane, to be engaged in transcendental loving service to the Lord is to have attained the spiritual kingdom. तो इस जीवन में भी कैसे हम भगवत धाम में रह सकते हैं? कृष्ण की सेवा, कृष्ण भावनामृत में जब हमारा मन को, हमारे तन को, हमारे इंद्रियों को, हमारे बुद्धि को, हमारे अहंकार को सब उसके सेवा में जब हम लगाएंगे, इस जन्म में भी, इस वक्त भी हम ऐसे होगा कि जैसे हम गोलोक वृंदावन में वास कर रहे हैं। That is what Prabhupada is telling in his purport here. In the spiritual world, there are activities of Krishna consciousness. तो मायावादियों का क्या ये है? निर्विशेषवाद। इस भौतिक जिंदगी के बाद ब्रह्म ज्योति में हम मतलब मिल जाएंगे और उसके बाद कुछ है नहीं, मतलब उसमें हमें सम्मिलित होकर रहना है। नो एक्टिविटीज, कोई गतिविधि नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे नहीं बता रहे। कृष्ण भगवान बता रहे वो एक लोअर स्टेट है, उससे ऊपर उठना है, भगवत धाम जाना है और भगवान की सेवा में हमें लगना है। सो देयर इज एक्टिविटी, देयर आर एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसलिए जो भी भक्त यहाँ पे कार्य कर रहा है वही कार्य वो जाके भगवत धाम में भी करेगा। So, and one who is situated in Krishna consciousness is already entered the kingdom of God. मतलब वो उस भगवत धाम में वो ऑलरेडी स्थित है। इस जिंदगी में भी जो भी भगवान की सेवा कर रहा है, डॉक्टर बन के कृष्ण भावनामृत में मरीजों का सेवा कर रहा है और जो पूंजी उसको मिल रहा है उसमें कुछ परसेंटेज वो भगवान की सेवा में डाल रहा है। दिस इज ऑल्सो बीइंग सिचुएटेड इन Krishna consciousness. An engineer getting profits, getting his salary, getting his savings, and part of the savings is giving it to the service of the Lord. That is also being situated in Krishna consciousness. Koi teacher, anybody can be situated like this. Not just by giving money, he can give prana, artha, diya, vacha. He can give his life. That means he can give all his energy. Artha, he can give money. It is also a conversion of his energy. What is money? Money is simply it is a form of your energy जो एक मतलब promissory note बनके आपके हाथ में है, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये आप डेडिकेट कर सकते हो, वो भी नहीं हो सकता तो दिया, बुद्धि तो है तो बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाइए। अगर अर्थ डोनेशन नहीं दे सकते, आप पूर्ण तरीके से भगवान की सेवा में नहीं रख सकते, बुद्धि है तो बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाइए। बुद्धि भी नहीं है ज्यादा तो वाचा, बोल तो सकते हैं तो लोगों को बोलिए ये यहाँ एक मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष है, राधा रानी और कृष्ण वृंदावन में वास करते हैं, ये उनका मंदिर है, आप मंदिर जाइए, भक्तों से मिलिए और भगवत गीता पढ़िए, हरे कृष्ण मंत्र जपा करिए, ये तो बोल सकते हैं, ये तो सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा सेवा करने वाले भी they already entered the kingdom of God, क्योंकि कृष्ण is absolute. When we touch Krishna or anything about Krishna, we are already situated in relation to Krishna. So Brahmi Sthiti means, Brahmi Sthiti का मतलब है not on the platform of material activities. भौतिक स्तर में उसका सोच जा ही नहीं रहा। And devotional service of the Lord is accepted in Bhagavad Gita as the liberated stage. तो सबसे ब्रह्म निर्वाण क्या है? जिस स्थिति में हम पूर्ण तरीके से, पूर्ण शुद्धता से भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की जब हम सेवा करेंगे तो ब्रह्म निर्वाण है और वो इस जिंदगी में भी, इस जीवन में भी साध्य है। So Srila Bhakti Vinod Thakur has summarized the second chapter. तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जो हमारे परंपरा में एक आचार्य है, उन्होंने दूसरे अध्याय का संक्षिप्त विवरण किया है। क्या है? As being the contents for the whole text, मतलब अगर आप दूसरे अध्याय को
सही तरीके से जानेंगे, आपको पूरा भगवत गीता का ज्ञान मिल गया. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर वाज व्हाट? कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड. भगवत गीता का एक अवलोकन हो रहा है दूसरे अध्याय में. तो दूसरे अध्याय जब हम पूरी तरह सीखेंगे, which we took so much time. We took 20 sessions for second chapter. We took 8 sessions for first chapter, and we did about 4 sessions for the overview of Bhagavad Gita. All this is time well spent. Don't worry. In the Bhagavad Gita, the subject matters are Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. तो भगवत गीता में कर्म योगा, ज्ञान योगा और भक्ति योगा को हमें सीखने को मिलेगा. और भक्ति योगा बीच में है, चैप्टर 7 to 12, क्योंकि वो अमूल्य है. और अमूल्य चीज को हम छुपा के रखते हैं, मतलब बीच में रखते हैं. एक बक्से में जब हम डालेंगे, ऊपर का एक हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, और अंदर हमारे अमूल्य वस्तु है. तो वो वस्तु है भक्ति योगा, वो भगवत गीता के बीचों बीच हमें मिलेगा. और पहले कर्म योग का विवरण होगा और 13वें चैप्टर से ज्ञान योग का विवरण होगा. लेकिन प्रभुपाद जी अपने सारे भावार्थ में भक्ति युक्त भावार्थ, भक्ति वेदांत पर्पट्स में क्या दिया है, हर श्लोक को, क्या चाहे ज्ञान योग का हो, कर्म योग का हो, भक्ति योग का तो है ही, सबको वो भक्ति में जोड़ते जाते हैं. क्योंकि वो बोलते हैं जब फाइनली हमें भक्ति ही करना है, क्यों इधर उधर भटकना है. सबको हम डाउटेल करेंगे, कर्म को भी डाउटेल करेंगे भक्ति में, ज्ञान को भी डाउटेल करेंगे भक्ति में, और भक्ति योग में तो हम जब स्थित रहेंगे उसका क्या कहना. So in the second chapter, Karma Yoga and Jnana Yoga have been clearly discussed, and a glimpse of Bhakti Yoga is given. So Bhakti Yoga ka glimpse we got from 64 to 72. We have been getting a overview of Bhakti Yoga, and from third chapter onwards, further descriptions happens. Mainly it deals with Karma Yoga from here onwards up to chapter 6, Sankhya Yoga. उसके बाद Bhakti Yoga 7 to 12, और उसके बाद ज्ञान योगा. But Prabhupada ensures that we are always situated in the Jnana path. So we'll just try to see what are the applied points of the shlokas we read today. So we can't generally avoid perceiving sense objects. पिछले जमाने में लोग वन में चले जाते थे, मतलब आंख इधर उधर देखेगा तो वन में जाके बैठ जाएंगे, तपस्या करेंगे. लेकिन आज के जमाने में वो पॉसिबल नहीं है. तो क्या करें? बट वी कैन श्योरली अवॉइड परस्यूइंग देम. मतलब देखना तो अनिवार्य है, लेकिन उसको घूरते हुए उसको उसके बारे में सोचना तो हम बंद कर सकते हैं. So that way we can avoid the temptations. So one line status of a serene peaceful mind. एक सेंटेंस में अगर हमें विवरण करना है आत्मा राम का, या जो स्थित प्रज्ञ का, या जो शांति रक्षति, मतलब जिसका जीवन में शांति है, वो क्या है? एवर फ्लोइंग बट नेवर फ्लडिंग, आपूर्यमाणा अचल प्रतिष्ठा, समुद्रम आप प्रविशन्ति अद्वत. आ रहे सारे डिजायर्स, आ रहे अंदर आ रहे, लेकिन वो विचलित नहीं हो रहा है. एवर फ्लोइंग नेवर फ्लडिंग, मतलब प्रवाह, मतलब उसके अंदर नदियों का मिलन हो रहा है, लेकिन वो एक प्रवाह जैसे नहीं बन रहा, वो अपनी सीमा को पार करके एक फ्लड नहीं बन रहा. Inner happiness is possible only for na kama kami. So that's what we read. Who can get real peace? Real peace जो बाहरिक शांति की बात नहीं करे, जो शांति अंदर से हमें मिलेगा, वो न काम कामी, जो काम के काम नहीं रख रहा है, उसी व्यक्ति को ये पॉसिबल है. सो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत था. और बाकी जो भी परस्यू कर रहे हैं भुक्ति मार्ग में, और मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये कभी भी शांत नहीं हो सकते. सकले अशांत, केवल भक्त शांत रह सकता है. कृष्ण भक्त निष्काम अथैव शांत. निष्काम मतलब अपने लिए वो कोई काम नहीं रखता, सारे काम
सारे चीज वो कृष्ण के लिए ही रख रहा है. सो दैट इज निष्कामा अतएव शांता, केवल वो शांत रह सकता है. सो वी हैव टू फाइट अ इनर बैटल टू काउंटर द आउटर वॉर. तो ये आते रहेंगे, ये हमारी जिंदगी में आते रहेंगे, लेकिन इसका जो हम लड़ाई लड़ना है वो अंदर लड़ना है, और जिससे हम बाहर जो वार सिचुएशन है, माया देवी कली पुरुष जो वार सिचुएशन लगा के बैठे हैं कलयुग में भौतिक जगत में, उसको हम जीत सकते हैं. तो श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन शोज 4 प्रीरिक्विजिट्स फॉर रियल पीस. तो सही माने में हमें अगर शांति चाहिए तो चार चीज हमें चाहिए, और हमने वो श्लोका नंबर 71 में किया. विहाय कामान निस्पृहा निर्ममा निरहंकारा, these are the 4 things. So, and Prabhupada also says desirelessness means to not desire for sense gratification but to desire for Krishna. Prabhupada जी अपने भावार्थ में बोलते हैं कोई भी डिजायर नहीं होना का मतलब है I must not have desires for my own self. मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कामना नहीं रखना चाहिए, सारे भगवान की तृप्ति के लिए हमें मनोकामना रखना है. So sloka number 72 ends saying that this is the way of spiritual life. It is पूरे दूसरे अध्याय में हमें जीवन की भक्तिमय मार्गदर्शन में हमें कैसे आगे बढ़ना है कृष्ण और प्रभुपाद जी अपने भावार्थ से हमें सिखा रहे हैं. तो इसका परिणाम क्या होगा, जो दूसरे अध्याय को जान लेगा उसका परिणाम क्या होगा. द रिजल्ट इज टिकट टू द किंगडम ऑफ कृष्णा. जब हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं हमारे जेब में भगवत धाम के लिए टिकट, रिजर्वेशन टिकट ऑलरेडी है, बस हमें जाने का इंतजार है. वी आर ऑलरेडी almost ensured that we are going to go back to Godhead. And in fact, Prabhupada is telling that yes, from being situated in Krishna consciousness, you are already in the kingdom of God. आप already भगवत धाम में स्थित है, एक फॉर्मेलिटी है वहां जाना. So this is the essence of chapter 2 of भगवत गीता. तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का ये एक संक्षिप्त विवरण है, एक निचोड़ है जिससे हम उसका रस का आस्वादन कर सकें. So there was a very interesting question which was put up. Prabhuji, what is the role of Guru in our life? Many times I've answered this. This time I'll try to give a more higher understanding because we are all now through with second chapter. So a Guru teaches us how to keep balance between the external things and how to keep focus on the internal things. Guru एक समत्व रखते हैं, मतलब समतोलन करते हैं हमारे जिंदगी में, कैसे हम आध्यात्मिक जिंदगी और भौतिक जिंदगी को बैलेंस करते हुए भगवान की सेवा की तरफ हम बढ़ सकें. सो दोनों शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों अपने अपने रोल्स निभाते हैं. बाय कीपिंग द फेथ इन द पोटेंट प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो श्रद्धा बरकरार रखने में वो हमारी सहायता करते हैं, एंड वो हमारी भौतिक जिंदगी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए जो चाहिए वो सीख हमें देते हैं. When we do this, we can apply it and we can move ahead in our spiritual life, even in this life. So thank you very much for joining me this session. We will again meet next week, probably starting with chapter 3. So we have finished 118 shlokas out of 700 shlokas, very important shlokas, and we finished 1/6 of Bhagavad Gita. Congratulations on that. People who have not heard my previous sessions, it's there on YouTube. Channel name is Janaka Dasa. Please go and listen to these lectures. There are 33 lectures now. Thank you very much. Please be associated with this session.